Hello students, today I am going to start the second chapter of your geography class 10th, water resources. So in this chapter we'll understand that how water is important, why it is scarce, why it is lacking in the world, why we all are fighting to conserve the water, or we are trying to invent new method of the water conservations, new techniques for the water management. So we'll start from the very beginning. The most and one of the major realm which give earth the status of blue planet or watery planet is hydrosphere. Why the earth is unique? Because it has a water. Now, how water is a unique feature? Water is a unique feature because the availability of water ensures the life on earth. Every living being, every single unit which has a life in it needs water to survive, whether it is plant or animals or small creatures, big mammals, whatever. So this hydrosphere is a very unique part which makes earth a very unique planet. When we study the constitution or the construction of water on earth, we get to know that there are a lot of water bodies such as ponds, rivers, lake, seas, oceans, gulf, bays. These are the water bodies which contain a huge amount of water. Okay. The 71% of earth surface is covered with water. That means by knowing this, you can think that see, we have a huge amount of water. 71% of the total earth is covered by water, with water. 96.5% of world's water is contained in ocean as salty water. Now you need to understand, if we take whole water as one, अगर हम इसको 100% में लेते हैं तो उसमें से 96.5% जो water है वो कहाँ पर है? That is available in ocean. ओशन का जो वाटर है वो कैसा है? दैट इज़ सॉल्टी. दैट इज़ अ बैड वाटर. वी कैन नॉट यूज़ इट, वी कैन नॉट कंज्यूम इट, नॉट इवन फॉर अ सिंगल ह्यूमन एक्टिविटी. So for us, those 96.5% water has no value. Rest 3.5% of world's water is fresh water. But problem क्या है? That it occurs in frozen state as ice sheets of Antarctica, Arctic, tundra region, ice cap in mountain and glaciers. 96.5% पानी कैसा है? ओशन में है, जो सॉल्टी है, जिसका कोई वैल्यू नहीं है, हम उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं. 3.5% जो वाटर है वो कैसा है? ये है तो फ्रेश वाटर, बट इट इज़ इन अ फ्रोज़न स्टेट. ये कहाँ पे है? आपके पोल्स पे है, ग्लेशियर्स के फॉर्म में है, जो जमी हुई बर्फ़ है जो पहाड़ों पर है, जो आइस शीट्स हैं, अंटार्कटिका और आर्कटिक रीजन है, जो टुंड्रा रीजन है, ये जो आपका वाटर है ये आइस फॉर्म में है, आइस शीट फॉर्म में है. और इसको हम कंज्यूम कब कर सकते हैं? जब ये सेल्फ मेल्टेड फॉर्म में आ जाए, जब ये खुद से पिघल के नदियों के पानी के रूप में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. Coming to the next point is less than 1% of world's water is a fresh water. Now imagine the water which we use is just 1% of water we are using, or whole of the world is using for all the activities involved everywhere on the planet. फिर चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर हो, वो इरीगेशन हो, वो कंस्ट्रक्शन हो, वो दूसरे जो फैक्टर्स हैं वो उसमें इस्तेमाल हो रहा हो, ये वाटर कितना है? जस्ट 1%. ओके, नाउ वी कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ दिस वाटर, this 1% is even such a big amount of water जिसको कि इस्तेमाल हम कितने सदियों से कर रहे हैं, और ये अभी तक हमारी नीड्स को, हमारी डिमांड्स को फुलफ़िल कर रहा है. इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में व्हेन वी टॉक, इंडिया रिसीव्स 4% ऑफ द ग्लोबल प्रेसिपिटेशन. Now what is precipitation? Is actually rain. Okay, this global precipitation is the rain which falls
on the India, ठीक है. So we use it. See, we really have to be thankful to the nature that we are getting this 4% of the total precipitation, because this precipitation makes our underwater level balanced, you know. चलिए, now we are coming to water, a renewable resource. See, before this chapter I have taught you that what are the resources. Resources are something which can satisfy our needs and demands, which are technologically accessible, which are economically feasible, which are culturally acceptable. ये तीन फीचर्स किसी ये तीन फीचर्स किसी रिसोर्स में अगर हैं तो वो हमारे लिए रिसोर्स कहलाता है, ठीक है. सो वाटर इज़ अ रीन्यूएबल रिसोर्स. रीन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? दोज रिसोर्सेज विच कैन बी रिप्रोड्यूस और रीजेनरेट. अंडरस्टैंड? सो द पॉइंट कम्स दैट इफ़ द वाटर इज़ रीन्यूएबल रिसोर्स, देन वाई वी ऑल आर रनिंग बिहाइंड कि वाटर स्कार्सिटी हो रहा है, वाटर फिनिश हो जाएगा, we need to consume it wisely, judiciously, we need to manage it in certain ways. See, water is inseparable part of biological life, that we all understand, and it's very important for human existence and activity. So see, the water which we consume is obtained from the precipitation. Precipitation is what? Rain, surface runoff, and groundwater. Groundwater is what? When rain falls, all the water, some amount of water goes deeper into the earth, and it makes a sort of groundwater level. And this is how it is renewed. Then we used to drag it and we used to consume it through the technology and tools. फिर हम इसको यूज़ करते हैं. अब हम आते हैं, water is important for the following reason. Here we'll study that what are the reason, what are the things which makes water so important, important part of our life. First, plants and animals require water for the transfer of energy from one part to other part in their body. Definitely. How? Plants are sown on the soil, in the soil. So what they do, through water they get all the nutrients and all the important elements from the soil, क्योंकि वो liquid form में आ जाता है और plants के लिए it becomes very easy to circulate it all around. Same with the animals. We take water, it makes everything digestible, and by the digestion we can consume the energy. Second part is, water is essential for day-to-day life and domestic purpose such as drinking, cooking, washing, bathing, and cleaning. These many things you have studied when you were in class first onwards से आप ये पूरा पढ़ते आ रहे हैं. वाटर क्यों इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट आता है जो थोड़ा सा आपके लिए यूनिक हो सकता है, दैट वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर कूलिंग मशीन्स एंड अदर इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग. When I say a machine is something which it's an automatic functioning body, and when it functions for a long run, definitely it increase or secrete a lot of energy, lot of heat. To cool down the temperature of the machine, it's very important to use water. मशीन इज़ नॉट जस्ट कि आपने एक छोटी सी मशीन आप इमेजिन कर रहे हैं कि मैं जिन मशीन्स की बात कर रही हूँ, दे आर वेरी ह्यूज मशीनरी, जाइंट मशीनरीज, जिनको कूलिंग के लिए वाटर की ज़रूरत होती है. देन फॉर यूटिलाइजिंग लैंड फॉर फार्मिंग, वाटर essentially provide irrigation. Irrigation has raised agricultural productivity and production. See, irrigation is something which is the most important part when we talk about the agriculture. See, थोड़ा सा अगर हम पहले जाते हैं तो जब हमारी कंट्री जो है वो इंडिपेंडेंट हुई थी, उस समय में अगर हम जाते हैं तो उस समय इतना इरिगेशन का पैटर्न नहीं था. एग्रीकल्चरली हम बहुत साउंड नहीं थे, हम हाई टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करते थे, मॉडर्न टूल्स हम इम्प्लीमेंट नहीं करते थे एग्रीकल्चर में. तो वाटर कंजम्पशन जो है दैट वाज प्रिटी लेस इन इट. बट इन टुडेज़ एरा where the population has increased drastically, now to feed that population it's very essential to grow crops rapidly. In a huge amount of crops are needed to satisfy the hunger of the population which is
अ वेरी मैसिव, ठीक है। अब क्या हुआ, टू अचीव दैट प्रोडक्शन India has opted the modern technological tools, machineries, manures, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, इसके इस्तेमाल से क्या हुआ, जो क्रॉप प्रोडक्शन था डेफिनेटली इट इंक्रीज्ड। लेकिन उसके साथ क्या हुआ, इन सारी चीज़ों ने क्योंकि वो हाई यील्डिंग सीड्स होते थे जिनको प्रोड्यूस होने में ज़्यादा वाटर कंजम्पशन लगता था, तो इससे क्या हुआ, इरिगेशन के लिए ज़्यादा पानी लगने लगा। प्लस जब हमने इतनी सारे केमिकल को यूज़ किया अपने सॉइल में, तो सॉइल क्या हुआ, वो पोल्यूटेड होना शुरू हो गया। उसको भी अब सबसाइड करने के लिए, उसका पोल्यूशन उसको न्यूट्रल करने के लिए वाटर का जो इनटेक था सॉइल में वो बढ़ाना ज़रूरी हो गया, ठीक है। नाउ rivers and streams of water are mistreated as free carrier of industrial and urban waste that they have become open drain. That's very true. When we talk about the rivers and natural streams of water are mistreated, yes, इसका क्या मतलब है, all the industrial and urban waste we used to throw it in the river. So now the rivers are not as holy as they were in early age, you know. Now they've become like an open drain. अगर आप किसी भी रिवर को अगर आप देखते हैं, चाहे वो गंगा हो, वो यमुना हो, वो गोमती रिवर हो, ये कोई भी जो रिवर बॉडीज़ हैं, ये सारी क्या हो गई, ये बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो गई, ठीक है। तो इसके लिए क्या हुआ, जो वाटर का जो क्वालिटी था वो डिग्रेड होना शुरू हो गया। तो ये तो हमने पढ़ा कि क्यों कहाँ पे वाटर की इम्पोर्टेंस है। अब हम आते हैं वाटर स्कार्सिटी। देयर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल लाइन रिटन इन योर बुक दैट वाटर एवरीवेयर एंड नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। एज आई एक्सप्लेन्ड यू प्रीवियसली कि वाटर इज़ ऑल अराउंड 71% ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड बाय वाटर, मतलब बहुत सारा पानी है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, उसका 70% वाटर कैसा है, वो वेस्ट वाटर है। वी कैन नॉट कंज्यूम इट, इट इज़ नॉट यूजफुल इन एनी मीन्स, नॉट इवन फॉर इरीगेशन, नॉट इवन टू कूलिंग डाउन द मशीन, वी कैन नॉट यूज़ इट टू वॉशिंग, क्लीनिंग, bathing, we cannot use it in any means, ठीक है। 30% of the water, out of that 3.5% water is not, it is in a what to say, the frozen state. So we really need to wait it to melt down and come as a glacier, river to that water, when it melts down, it comes through the वाटर बॉडीज़, वाटर वेन्स, जिसको रिवर हम कहते हैं। तो हमें उसके लिए वेट करना होता है। 1% जो वाटर है हम सिर्फ उसे कंज्यूम करते हैं। सो वी रिसीव in India, if we talk it in Indian context, we receive enough rainfall and we have a sufficient number of both perennial and seasonal river and underground of water, but still we face shortage of scarcity. When we say the shortage or scarcity of water, it's not just few places which comes in mind. जब हम आपको बोलते हैं पानी की शॉर्टेज है, तो आई एम श्योर देर आर सर्टन स्टेट विच कम्स इन माइंड दैट कि राजस्थान में वाटर स्कार्सिटी है, सम एरिया ऑफ गुजरात जहाँ पे वाटर स्कार्सिटी है, बट दिस इज़ नॉट ट्रू. Water scarcity is all around the world. It is everywhere. If you see the village area, if you see even in cities, the underwater has gone deeper. Earlier, the water we were getting at 50 feet down. Now it is shrink up to 120 feet down. That means every place is suffering from the water scarcity. Yes, the mode could be different, the phase of scarcity could be different, लेकिन scarcity हर जगह है. The water scarcity is not just the quantitative scarcity. जब हम बोलते हैं पानी की कमी, तो पानी की कमी सिर्फ पानी की क्वांटिटी में कमी नहीं होती है. इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि पानी अगर क्वालिटेटिवली क्वालिफाइड नहीं है पीने के लिए, यूज़ करने के लिए, तो वो भी हमारे लिए स्कार्सिटी है. इसका एक एग्जांपल समझिए. अगर आपको प्यास लगी है, आपके पास एक बॉटल में पानी है, आपके सामने वो रखा है, लेकिन वो पानी कैसा है, वो इम्प्योर वाटर है, वो साफ़ पानी नहीं है, तो आपके लिए क्या हो गया, पानी की कमी ही है ना. वो स्कार्सिटी ही तो है, उसको आप यूज़ नहीं कर सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए. तो द स्कार्सिटी हैज़ अ डिफरेंट फेज़
and it is basically majoritarily it has two phase, qualitative scarcity and quantitative scarcity. अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे that what are the reason for the scarcity of water. ये मैन मेड भी है एंड दिस इज़ नेचुरल ऑल्सो. सो क्या है? द फर्स्ट इज़ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल ओवर स्पेस एंड टाइम. व्हेन इट कम्स इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इंडिया इज़ अ कंट्री वेयर मॉनसून प्लेज अ वेरी वाइटल रोल. ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रेसिपिटेशन है, जो रेनफॉल है, दैट इज़ वेरी अनइवन. समवेयर इट्स वेरी हाई, somewhere it's very less, some percentage of precipitation is there. So that is how this rainfall actually plays a very important role to fulfill or to balance the underwater or underground water. पानी नहीं बरसेगा तो जो ज़मीन के अंदर पानी होता है, जो जाता है बरसात में, वो नहीं जाएगा, जिससे कि जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो क्या होता है, श्रिंक होता है. दूसरा है सीजनल वेरिएशन इन रेनफॉल. डेफिनेटली हर सीज़न में जो वेरिएशंस है, समर्स में जब बारिश होनी चाहिए तब वो नहीं होता है, जिसकी वजह से कि जो अंडरग्राउंड वाटर है बहुत नीचे चला जाता है. फिर जिस सीज़न में नीड नहीं है उसमें जो है बहुत बारिश हो जाएगी. सेकेंड इज़ ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर फॉर वेरियस एक्टिविटीज़. नाउ यू सी, imagine at your home how many places are there where you use water. Is it only cooking, cleaning, bathing? Just no. आपके घर में आप कितनी चीज़ों में पानी का इस्तेमाल करते हैं? आई एम श्योर कि सिर्फ खाना बनाने में नहीं, सिर्फ नहाने में नहीं, सिर्फ कपड़े धोने के लिए नहीं, इसके अलावा हम कहाँ करते हैं? हमने अपना टैप ओपन किया, अपनी कार वॉश कर रहे हैं, अपनी बालकनीज़ वॉश कर रहे हैं, अपना टेरेस, अपना छत पे पानी डाल रहे हैं टेम्परेचर कम करने के लिए. उसके साथ साथ इफ़ यू हैव पेट्स एट होम, पेट्स को अननेसेसरीली आप नहला रहे हैं, बहुत ज़्यादा पानी यूज़ कर रहे हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वाटर का हमारा द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग वाटर इज़ एक्चुअली मिसमैनेज्ड. हम उसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये गलत हम तरीके से उसे इस्तेमाल करते हैं. फिर आता है मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, जिसमें कि है स्पिलिंग ऑफ वाटर, मतलब पानी खुल रहा है, बह रहा है, लीकेज है पाइप में, हम उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं. जो रेजिडेंशियल टैंक होते हैं वो ओवरफ्लो होते रहते हैं फॉर 5 मिनट्स और 10 मिनट्स. वी आर नॉट बॉदर ऑन दैट. उसके साथ साथ है वाटर पोल्यूशन. वाटर पोल्यूशन जैसे मैंने आपको बताया कि ऑल द वेस्ट कम्स फ्रॉम द इंडस्ट्रीज और फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एरियाज दिस टू थ्रो इट इन द वाटर बॉडीज. सो दैट्स हाउ द क्वालिटेटिव मेजर ऑफ द वाटर decreases. Next is urbanization and changing lifestyle have put pressure on water resource. How? See, earlier when India was a rural country, when 75% population belongs to the rural areas, वहाँ पे क्या था? वी हैड ग्रीनरी ऑल अराउंड. इरिगेशन, खेती जो थी वो मानसून डिपेंडेंट हुआ करती थी. इरिगेशन के दूसरे सोर्सेज नहीं थे. बारिश होती थी तो सब जगह पानी पड़ जाता था, खेत से सिंचाई हो जाया करती थी. और किसी के पास फैंसी कोर्टयार्ड्स नहीं होते थे, फैंसी बालकनीज़, बगीचे, गार्डन्स, वो जो अभी हैं जो घरों के सामने थोड़ी हम बनाते हैं और फिर उसमें हम फैंसी फ्लावर्स लगाते हैं, ऐसी चीज़ें लगाते हैं जिसमें ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है. हमें ट्वाइस अ डे उनको इरीगेट करना होता है, उनमें पानी डालना होता है, स्प्रिंकल ऑफ वाटर करना पड़ता है. तो ये सब चीज़ें क्या हैं, जो फैंसी अर्बनाइजेशन है, जो फैंसी अर्बन लाइफ है, उसको हम लोगों ने क्या किया, इन्हांस कर दिया, उसको हम लोगों ने बढ़ाया, जिसकी वजह से जो वाटर इनटेक था पर पर्सन वो क्या हो गया, वो बढ़ना शुरू हो गया. नाउ व्हेन वाटर फ्रॉम प्रेसिपिटेशन एंड रिवर फेल टू फुलफिल आवर डिमांड्स, वी स्टार्टेड यूजिंग अंडरग्राउंड वाटर. एज अ रिजल्ट अंडरग्राउंड वाटर हैज स्टार्टेड डिप्लीटिंग. How? See, earlier as I said, we were dependent on the monsoon. Now monsoon, the scenario or the timetable of monsoon has shifted somehow. Some year it's very good, some year it's very less. तो इससे क्या हुआ, now we have shifted our need towards the underground water की तरफ हमने अपने आप को शिफ्ट कर लिया. अब हम क्या करते हैं, किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, एवरी हाउस हैज़ अ मशीन टू ड्रैग वाटर फ्रॉम अर्थ. हर किसी के पास आपने स्विच ऑन किया, आपका वो मशीन स्टार्ट हो गई, आपका टैंक फुल हो गया. ये कहाँ से हो रहा है? ये हो रहा है आपका अंडर वाटर. हर घर से एक ऐसी मशीन है जो कि 1 मिनट में अंडर वाटर से, अंडरग्राउंड से
वाटर निकाल लेती है। तो ये जो हम वाटर निकाल रहे हैं, हम सिर्फ निकाल रहे हैं, उसको हम उसका जो डिप्लीशन है, उसका वो जो डिप्लीट हो रही है, उसको हम रिन्यू नहीं कर रहे हैं, उसको हम फिल नहीं कर रहे हैं। हमने ये तो देख लिया कि इसको निकालने के लिए व्हाट वी कैन यूज़, बट वी डिड नॉट मेक और वी डिड नॉट डेवलप एनी टेक्नोलॉजी टू रीफिल इट। सो दैट इज़ हाउ जो अब हमारा अंडर वाटर था वो भी क्या हो गया, कम हो गया। अब इसके अंडर वाटर डिप्लीशन के रीज़न क्या है? फर्स्ट, ओवर ड्राफ्ट ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन इन रूरल एरियाज़। सेम ट्यूबवेल्स हैं, पंप्स हैं, ये सारे हम इस्तेमाल करते हैं कहाँ से, जो हमारा ग्राउंड वाटर है उसको निकालने के लिए। नेक्स्ट इज़ एक्सेसिव यूज़ ऑफ वाटर इन अर्बन एरिया फॉर द डोमेस्टिक पर्पस। अब जो डोमेस्टिक पर्पस के लिए जैसा मैंने आपको बताया कि हम वाटर को यूज़ करते हैं, सो दैट इज़ हाउ वी आर एक्चुअली नॉट यूजिंग इट वाइजली। सो द पॉइंट इज़ दैट दीज आर दी सर्टेन थिंग्स जो कि जिसकी वजह से जो वाटर स्कार्सिटी है वो हो जाएगी। नाउ कमिंग टू द वाटर कंजर्वेशन, you know, we all have to make efforts to use available quantity of water wisely for our growing population and their needs and activities. That is very true that if we will not use water wisely, the day is not so far when we'll scarce with water completely. तो क्या करना है हमको, वाटर कंजर्वेशन हम कैसे कर सकते हैं? वी शुड यूज़ इज जुडिशियसली एंड देयर मस्ट बी अ प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स. टेल योर पेरेंट्स, ट्रीट योर एल्डर्स, ट्रीट योर younger, let them understand how the water is important to all and what steps we can take to ensure the water conservation. Second is recycling of water or polluted water. हम क्या करते हैं, आप सबके घर में एसी होगी, हमने देखा कि एसी जब हम स्टार्ट करते हैं तो जो एक्सटर्नल पार्ट है वहाँ से वाटर ड्रॉप करके बाहर जाता है. हाउ यू कैन यूज़ इट? इफ़ यू सी दैट इन अ डे एटलीस्ट 2 bucket ऑफ वाटर कम्स फ्रॉम एसी विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है वो आपके लिए. उसके लिए आपको किसी अंडरग्राउंड टैप ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है. उसके जहाँ से पाइप आ रहा है वहाँ पे अगर आपने एक बकेट भी रख दिया है तो वो क्या हो जाएगा, उसमें वो दिन भर में फिल हो जाएगा. अब ये जो वाटर है, ये आई अग्री कि इसको आप पीने के लिए और खाना बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, बट फॉर क्लीनिंग पर्पस यू कैन यूज़ इट, to cleaning your courtyard or to cleaning your cars and bike. This water can be used. So we have to find out the ways to use water wisely. So that is how this water conservation is important. See, one more point which is mentioned, that perforated material for pavement, driveways and open yards so that rainwater can seep and enrich underground water resource. How? Earlier, आपको those who belongs to the rural areas, you might be knowing कि वहाँ पे कच्चे घर हुआ करते थे. जो ड्रेन होती थी वो कच्ची होती थी, सीमेंटेड नहीं होती थी. ज़्यादातर जगहों पे मिट्टी होती थी. तो मिट्टी की क्वालिटी क्या होती है, ये वाटर को अब्जॉर्ब कर लेती है. और ये जो अब्जॉर्प्शन है, इस अब्जॉर्प्शन से जो ग्राउंड वाटर लेवल है, इट एक्चुअली रिप्लेनिश इटसेल्फ, राइट. बट नाउअडेज व्हेन वी टॉक अबाउट द अर्बन इंडिया हैज़ मेड एवरीथिंग सीमेंटेड. They have all thing laminated. Now the water through precipitation which we get hardly goes deeper into the earth. अब क्या है, जो ड्रेन है वो सीमेंटेड है. सीमेंटेड ड्रेन की वजह से जो बारिश का पानी है, जो हमारा मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर है, वो क्या होता है, वो वेस्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें जो सोकिंग क्वालिटी होती है वो नहीं होती है. तो जो पानी है जो बारिश के फॉर्म में आया वो ज़मीन के अंदर नहीं जा पाता और वो बह के निकल जाता है. तो अब हमें क्या करना चाहिए, एक ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहिए जिससे कि जो परफोरेटेड मटेरियल्स होते हैं, जो पेनिट्रेट जिसको कर सकते हैं, जो ज़्यादा अब्जॉर्ब करते हैं, सोक करते हैं वाटर को, हमें उन चीज़ों से ड्रेन्स और पेवमेंट्स और ये सब चीज़ें बनानी चाहिए ताकि जो पानी है वो ज़्यादा से ज़्यादा अंदर जा सके. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक जो अब हम पढ़ेंगे, दैट इज़ द मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज और वाटर मैनेजमेंट.